गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस और हम करने जा रहे हैं गाला का क्वेश्चन पेपर 2 अकाउंट में. ठीक है, सेक्शन में हम पढ़ेंगे हाउ मेनी नंबर्स ऑफ पार्टनर्स आर देयर इन पार्टनरशिप बिजनेस अकॉर्डिंग टू द रूल 10 ऑफ द कंपनीज रूल 2014. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी. In which account and on which side the share of partners share profit is recorded under the fluctuation capital account method. इसका आंसर है ऑप्शन बी. Goodwill depend on which accepts. इसका आंसर है ऑप्शन डी. Goodwill is a financial value of. इसका आंसर है ऑप्शन बी. Where are the effects given when the value of liabilities decreases at the time of reconstruction of partnership firm? इसका आंसर है ऑप्शन ए. Which of the following balance is accumulated profit? इसका आंसर है ऑप्शन बी. According to which accounting standard in actual generated goodwill should not be shown in the book of account? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. If a new partners bring his share of goodwill in cash, in which proportion is the goodwill distributed between the old partner? इसका आंसर है ऑप्शन डी. When only old profit and loss sharing ratio is given at the time of retirement of a partners, gaining ratio of the remaining partners will be. इसका आंसर है ऑप्शन बी. Which is the first payment made from the realization of asset at the time of dissolution of firm? इसका आंसर है ऑप्शन ए. To which account balance of workman accident compensation fund is transferred to the time of dissolution of firm? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी. If the company does not receive subscription for the least dash of the company public issues, then share issues will be cancelled. इसका आंसर है ऑप्शन सी. For public issues of share, company has to take a permission from whom? इसका आंसर है ऑप्शन बी. At the rate debentures will be issued at discount. इसका आंसर है ऑप्शन डी. Which of the following analysis shows stakeholders based classification? इसका आंसर है external analysis. ऑप्शन ए. The information regarding the use of asset given the analysis of. इसका आंसर है ऑप्शन डी. In which terms ratio are presented? इसका आंसर है ऑप्शन डी. Which of the following is not included in operating expense? Okay, इसका आंसर है all of given ऑप्शन डी. Increase in current asset and decrease in current liability. इसका आंसर है both are cash flows. Dividend और interest receive on investment is. इसका आंसर है डी. अब हम सेक्शन बी पे आएंगे. ओके, सेक्शन बी का पहला है कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट. तो हमने यहाँ पे दे रखा है द एक्सेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. अब है कि व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स चेंजेस मेड इन पार्टनरशिप ड्यू टू द सेवरल रीजंस. ठीक है. अब एक इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पेबल पर एनम एंड ऑन अनपेड अमाउंट पेबल टू द रिटायरमेंट पार्टनर. तो इसका आंसर है 6% एनम. हाउ विल यू डील विद बैड डेट रिटर्न विच इज रिटर्न ऑफ अर्लियर. तो इसका आंसर है यहाँ पे और एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बैड डेट रिकवर रिटर्न विच इज रिटर्न ऑफ अर्लियर इज टू बी क्रेडिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड आता है. ठीक है. अब हम दूसरा करेंगे. हाउ वुड यू डील विद द प्रोविडेंट फंड बैलेंस शोन इन बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. तो इसका आंसर यहाँ पे है हमारा प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी इज अ लायबिलिटी, देयरफॉर द बैलेंस ऑफ द फंड इज क्रेडिटेड टू रिजोल्यूशन अकाउंट एंड प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज क्लोज. प्रोविडेंट अकाउंट फंड जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा. अब हम क्वेश्चन 26 पढ़ेंगे. मेंशन द टाइप ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटीज. ठीक है. There are two types of debenture on the basis of security are follow. पहले तो secured और mortgage debenture, दूसरा simple और unsecured और naked debentures. What is the ratio? अब ratio क्या होता है? The relationship between two accounting figures expressed mathematically is known as a financial ratio. 28. Mention the traditional classification of ratio. The traditional classification of ratio are follow. Ratio of the trading account and profit or loss account. Second है ratio of balance sheet. Third है composite ratio. 29. Where is the addition is general reserve recorded? Addition is general reserve recorded
under the heading of non-cash expense and provision is the cash flow statement of operating activities. लास्ट क्वेश्चन है गाइज, व्हाट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती है? तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी मीन्स मेन एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस टू अर्न इनकम विच आर नेदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नॉर फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन सी, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। 31 है कि ए, बी और सी जो है पार्टनर्स हैं ऑफ फर्म। ऑन 1/4/2023 को देयर कैपिटल वाज 40, 30 एंड 80,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वाज रियलाइज दैट चार्जिंग ऑन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20% इज मिस्ड आउट। राइट अ जर्नल एंट्री एंड एंट्री फॉर रेक्टिफिकेशन। अब हम क्या करेंगे ना कि जो 12% इंटरेस्ट है वो हम किस पे काटेंगे? 12% इंटरेस्ट जो हमें कितना दे रखा है, एक मिनट गाइस मैं आपको ये बताती हूँ। 12% इंटरेस्ट हमें किस पे काटना है? पहले तो 40,000 पे एक, दूसरा 30 पे और चौथा 80 पे। तो हमने जो है ना इन पे इंटरेस्ट काटा तो हमारा आया ये और ये, ठीक है। ये हमने इन तीनों पे इंटरेस्ट काटा है, इन तीनों पे हमने जो है 12% इंटरेस्ट काटा है। तो हमारे पास ये आया, टोटल हमारे पास 18,000 आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें जो रेशो नहीं दे रखी थी तो हम जो है इक्वल रेशो में बांट लेंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। जो नीचे की वैल्यू होती है वो हमेशा माइनस में जाएगी और जो ऊपर की है ना उसको हम प्लस में लिखते हैं। यहाँ पे मैं आंसर की बात नहीं कर रही, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसकी बात कर रही हूँ। यहाँ पे जो है हर में माइनस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो हम आगे जब देख लेते हैं कि क्या करना है हमें। तो हमने इसको किया तो हमारे पास ये आया और ये आया। जो प्लस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है, जो प्लस होता है वो हमेशा क्रेडिट होता है और जो माइनस में होते हैं वो डेबिट होता है। हम इसकी रेक्टिफिकेशन हमें बोला है कि एंट्री हमें डालने तो हम करेंगे कि ए कैपिटल और करंट अकाउंट जो है वो डेबिट होगा इतने से, बी कैपिटल और करंट अकाउंट इतने से होगा टू सी कैपिटल और करंट अकाउंट में, ठीक है। अब हम क्वेश्चन सेकंड पढ़ेंगे। डी एस एंड पी आर द पार्टनर्स इन द फर्म प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, ठीक है। हमें इक्वली मतलब कि हमारा 1:1 और 1 बोला है। ऑल पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ, अब ये रेशो हो गया, डिसाइड किया। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट गेन रेशो, हमें गेन रेशो फाइंड करना है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, पार्टनर्स के नेम लिखेंगे, उनके शेयर्स जो थे पुराने वो ये न्यू शेयर्स हैं और उनके पुराने शेयर्स लिखेंगे। अब हमने ये किया, हमें गेन का फॉर्मूला आना चाहिए। न्यू में से ओल्ड को माइनस करते हैं तो हमारा जो है गेन और मिलता है, ठीक है। तो हमने इतना किया, तो ये जो है सेक्रीफाई कर रहा है, जो डी है वो सेक्रीफाई कर रहा है, बाकी के जो सी, एस और पी हैं वो गेन कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारा जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक्रीफाई कितना कर रहा है, ये इतना, गेन ये इतना कर रहा है और ये इतना कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ इतना ही करना था इस क्वेश्चन में। अब है कि राइट शॉर्ट नोट रियलाइजेशन अकाउंट पे हमें शॉर्ट नोट बोला है, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हो इतने का, ठीक है। ये वाला आया है आंसर 33 का, ये है और मैं इसको गो थ्रू करूँगी सिर्फ, बाकी का आपको जो है समझ तो पहले लिया होगा आपने, ठीक है। तो हम करेंगे ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म द अकाउंट विच इज प्रिपेयर टू इनकॉर्पोरेट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स फॉर डिस्पोजल ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म इज नोन एज अ रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज अ अक्यूप्लेसमेंट ऑफ अकाउंट। आफ्टर क्लोजिंग ऑल असेट्स एक्सपर्ट कैश और बैंक अकाउंट्स दे आर ट्रांसफर टू डेबिट साइड्स ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट ऑन देयर at their book value. After closing all liabilities account, they are transferred to credit sides of realization account of their book, ठीक है। हमारे पास ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, the realization of all the assets are credited to the realization account. All the payments of all liabilities are debited to realization account. The disclosed expense is debited to the realization account. The balance figure in realization account will be either profit or loss of the realization account as the case may be. This profit are also is to be transferred to the partners capital account in their profit or loss share ratio, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो। पास journal entries for the following transaction at the time of dissolution without narration। अब पहला दे रखा है कि हमें विदाउट नरेशन के बाद दे रखा है और पहला दे रखा है कि इनकम टैक्स लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज डिटरमाइंड फॉर 35,000, इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब हम इसने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो हमारा है ये रहा 34। हमारे पहले लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट टू कैश अकाउंट, ठीक है। पहले की एंट्री ये करनी है हमें। फिर ये रियलाइज 2500
25,000 फॉर अनरिकॉर्डेड मशीन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। अब हमें क्या करना है, डिसोल्यूशन के टाइम पे जो है ना हमारे पास रियलाइज कितना हुआ, 25,000 हमारे पास आया, तो हम इसकी वैल्यू क्या करेंगे, अब इसका जो है लिखेंगे कैसे वो हमें जानना है कि देखो कैश हमारे पास आया तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कैश और बैंक अकाउंट जो है डेबिट किया टू रियलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास पैसे आए, यहाँ से पैसे हमें गए थे क्योंकि हमें इनकम टैक्स में भरना था, वो हमारी लायबिलिटी होती है, तो पैसे हमारे यहाँ से गए तो हम उसको क्रेडिट करेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब हमारे पास पैसे यहाँ पे आ रहे हैं क्योंकि हमने मशीन को बेचा है, तो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, कन्फ्यूज मत होना इसमें। A partners has accept, थर्ड वाला पढ़ रहे हैं हम, a partners has accept to pay loan to his STMM 40,000 which was given to the firm, ठीक है। अब हम देख लेंगे इसका क्या होगा कि पार्टनर्स जो है लोन कौन पे कर रहा है, वो डेबिट हो जाएगा टू उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। लोन ऑफ SMT अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इतने से, बस इसमें यही करना है क्योंकि नरेशन हमें बोला नहीं है। अब हम दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। ऑन 1/7 और 17 में पूजा लिमिटेड इश्यूज 10,000 8% डिबेंचर में ऑफ 200 ईच एट प्रीमियम ऑफ 5%। द डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन 30/6/2023 एट 220 पर डिबेंचर विदाउट राइट जनरल एंट्रीज इन द बुक ऑफ कॉमन विदाउट इंटरेस्ट। अब इसमें भी नरेशन नहीं देना है, तो हम इसकी एंट्री देख लेंगे, ये आएगी, ये रहा कि फर्स्ट 1/7/17 को बैंक अकाउंट ने डेबिट किया इतना टू डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट अकाउंट में इतना, ठीक है। 1/7 को जो है बेंच डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में इतना हुआ, लॉस जो है डिबेंचर पे कितना इतना का हुआ, टू डिबेंचर अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम सर्विस और टू प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिबेंचर अकाउंट, ओके। और इसकी लास्ट वैल्यू, लास्ट जो ट्रांजेक्शन है वो ऐसे रिकॉर्ड होगा कि 30 और मतलब 30/6/2027 को 8% डिबेंचर इतना था, प्रीमियम रिडक्शन ऑफ डिबेंचर इतना हुआ टू डिबेंचर होल्डर, ठीक है। इसकी सिर्फ इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा इसमें। और लास्ट वाला हमारा थियरी क्वेश्चंस है, तो हम सिर्फ एक बार उसको रीड करेंगे। स्टेट द प्रोसीजर ऑफ इश्यूज ऑफ डिबेंचर, ठीक है। तो ये रहा, सॉरी यार, इसका जो है ना पहले वाला क्वेश्चन जो है उसका ये एक और है यहाँ पे कि 30/6/2033 को डिबेंचर होल्डर का अकाउंट इतना हुआ टू बैंक अकाउंट में, ठीक है। अब हम उसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन करेंगे। द फॉर्मेलिटीज ऑफ द इशूज ऑफ डिबेंचर्स एंड रिलेटेड प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट आर अंडर, ठीक है। अब पहले क्या, अ रिजोल्यूशन इज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग व्हेन इट इज अ डेबिट टू इशूज डिबेंचर, अ रिजोल्यूशन इज पास्ड इन द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। द रिजोल्यूशन शुड स्टेट द अमाउंट ऑफ द डिबेंचर्स, द numbers of debentures, rate of interest thereon and other terms related to the issues of debenture. अब हम सेकंड पढ़ेंगे, prospectus. For the issues of the debentures, a company should issue a prospect inviting the public to subscribe for debentures, given full information as required. थर्ड हम पढ़ेंगे Company of Companies Act and Provision of CB. Companies Act and Provision of CEBI should be considered at the time of issues at debenture. चौथा पढ़ेंगे एप्लीकेशन फॉर्म। कंपनी हैज़ टू प्रिपेयर अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर डिबेंचर्स। फिफ्थ है बुक अकाउंट इज अ शेड्यूल बैंक व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक द मनी रिसीव्ड ऑन द एप्लीकेशन हैज़ टू बी कीप क्रेडिट इन द शेड्यूल बैंक इज अ सेपरेट अकाउंट। द कंपनी सिक्योरिटी प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन रिसीव एट द स्टेटमेंट ऑफ अलॉटमेंट आफ्टर द क्लोजर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 में मिनिमम सब्सक्रिप्शन शुड बी 90% ऑफ इशूज अमाउंट। सेवेंथ अमाउंट ऑफ डिबेंचर, फुल अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स और इन इंस्टॉलमेंट में बी कॉल्ड अ कंपनीज ऑन एप्लीकेशन। एट्थ वाला हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ इशूइंग डिबेंचर, डिबेंचर में बी इशूड एदर एट पार्ट एट अ प्रीमियम और एट अ डिस्काउंट। सो दिस इज your last question. So thank you guys for watching the video. This is Sigma Institute of Excellence. Bye bye guys.